Okay, everyone, welcome back to our second lecture. और दूसरे सत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। Just the camera a bit. Okay, fine. All right, let's go now to lesson number 6. और आइए हम अध्याय 6 में चलें। Another important thing to keep in mind when we are studying scripture और वचन को व्याख्यान और अध्ययन करते समय एक और बात को मन में हम रखें is to look at the grammar of the text. और जो वचन हम देख रहे हैं उसके व्याकरण को भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। So, for example, if it is we will look, is something in the past tense, is something in the present, or something in the future. और उदाहरण के लिए कुछ चीजों को हम भूतकाल में देखते हैं, उपस्थित काल में देखते हैं, या कुछ चीजें जो भविष्य काल की हैं उनको जब हम अध्ययन कर रहे हैं। So let's go to Ephesians 1 verse 3. और इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन में हम चले। And let's read that, and you tell me whether that verse is in the past tense, present, or future. और तब आप पढ़ें और एक पहला अध्याय उसका 3 वचन और उसके बाद आप मुझे बताइए कि वो बीते काल में है, उपस्थित में है या भविष्य में है। Right, somebody can read it. Ephesians 1:3. और इफिसियों 1 उसका 3 कोई भी जोर से पढ़ सकते हैं। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. He has blessed us. और उसने हमें आशीषें दी हैं। Is it past tense, or is God going to bless us? Is it future tense? क्या ये बीता हुआ है या उपस्थित है या आने वाली आशीष के बारे में कह रहा है? What does the Bible say here? बाइबल में क्या लिखा है? He has blessed us. और वो हमें आशीषित कर चुका है। That means it is already done. और इसका मतलब है पहले ही हो गया है। Right? So if the Bible is stating it in the past tense, then we should keep it as in the past tense. और यदि बाइबल भूतकाल के बारे में अगर कुछ कह रही है तो हमें भी उसे भूतकाल में ही रखने की आवश्यकता है। Right? So if God says, I have blessed you, then we should say God has blessed us. और जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीषित कर चुका हूं, तब हमें कहना है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका है। Amen? आमीन। It's not just something, oh, it's going to happen in the future. God has already done it. और देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ भविष्य में होने पर है, पहले ही परमेश्वर से कर चुका है। Right? Look at another example, Colossians chapter 1 और एक और उदाहरण देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय and verse 13. और उसका 13 पद। Colossians 1 कुलुस्सियों की पत्री verse 13. और पहला अध्याय उसका 13 वचन। Somebody can read it? पढ़ सकते हैं। Yes. Past tense or future tense? ये भूतकाल है या भविष्यकाल है? Past tense. It says he has delivered us और वो कहता है कि उसने हमें छुड़ाया है and has translated us. और उसने हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया है। It is done. और ये हो चुका है। So we are not waiting for God to deliver us. और हम इंतजार नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। We have been delivered from the powers of darkness. और हम अंधकार के अधिकार से छुड़ा लिए गए हैं। And we have been translated into his kingdom. और हम उसके राज्य में प्रवेश करवा दिए गए हैं। Right? So we are not praying, oh God, please deliver me from the devil. और हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर मुझे अंधकार से छुड़ा लीजिए। No, he's already delivered us. और नहीं, वो छुड़ा चुका है। We're not praying, oh God, please take me into your kingdom. और हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर आप मुझे अपने राज्य में ले लीजिए। He has already translated you into his kingdom. और वो पहले ही आपको अपने राज्य में प्रवेश करा चुका है।
Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Right? So when we read the text, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं, we must be mindful of the grammar, is how the language, how the sentence is formed. और तब हमें उसका व्याकरण को अपने मन में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो वाक्य जो लिखा है वो किस तरीके से लिखा गया है. Right? And also we must look at the meanings of the words. और उसके साथ साथ शब्दों का मतलब भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है. Now, then the good thing is in English, for the English language, we have a lot of tools that we can use to look up the meaning of the words in the Hebrew and the Greek. और देखिए, अंग्रेजी के लिए एक लाभ की बात यह है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिसमें इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा के शब्दों के अर्थ को वो देख सकते हैं. So we try and study the meaning of the words. और हम शब्द के अर्थ को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं. So let me give you an example. Let's go to Luke chapter 10. और आइए एक उदाहरण देखते हैं. लूका उसका 10 अध्याय and verse 19. और उसका 19 पद. Luke 10:19. Somebody can read that. लूका 10:19 कोई भी पढ़ने में सहायता करें. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Notice here there are two important words. There is the word authority and there is the word power. और आपने ध्यान दिया, यहाँ पे दो विशेष शब्द हैं. एक है अधिकार, दूसरा है सामर्थ्य. So he's telling us, I give you authority. और यीशु हमसे कह रहा है, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं over all the power of the enemy. और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर. So we have authority और हमारे पास में अधिकार है over all the power. और सारी सामर्थ्य के ऊपर. That word power is talking about ability, what someone can do. और देखिए, यहाँ पर सामर्थ्य शब्द जो है वो एक योग्यता को दिखाता है, एक व्यक्ति के बारे में कि उसके अंदर करने की योग्यता है. That word authority which Jesus has given us, it's delegated authority, it's legal authority. और जो यीशु मसीह अधिकार की बात कर रहा है वो एक निर्धारित किया गया या दिया गया अधिकार है और वो यीशु मसीह हमें दे रहा है कार्य करने के लिए. So we have authority over all the ability of the enemy. और हमारे पास में अधिकार है उस शत्रु के सारी योग्यता के ऊपर में. That means whatever the devil can do with all his strength, और जो कुछ शैतान अपने बल से कर सकता है, we have authority over. और उसके ऊपर हमारे पास में अधिकार है. You understand? समझ रहे हैं? Yes. So we have to understand, when we understand the meanings of the words, then we get a better understanding of what the Bible is telling us. और देखिए, जब हम शब्दों के अर्थ समझ जाते हैं तब बाइबल हमसे क्या कहना चाह रहा है उसे हम बेहतर रीति से समझ सकते हैं. Another example, let's go to Philippians chapter 2. और फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय में चले, एक और उदाहरण हम देखेंगे. Philippians chapter 2. फिलिपियों उसकी दूसरी अध्याय. And we'll read verse 9 to 11. Philippians 2, 9 to, sorry, not 9 to 11. Philippians 2 verses 6 to 11. और फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 6 से 11. Philippians 2, 6 to 11. फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 6 से 11. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ
क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Now, this passage gives us some understanding on how God became a man. और देखिए ये जो पद है वो हमें थोड़ी समझ प्रदान करता है कि किस प्रकार परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। In verse 6, it's talking about Jesus. और छठा वचन जो है यीशु के बारे में बात कर रहा है। It says he was in the form of God और वो लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी and he was equal with God, और वो परमेश्वर के तुल्य था, but he didn't hold on to it tightly. और लेकिन फिर भी उसने उसे कस कर पकड़ के नहीं रखा। So before Jesus became a man, और यीशु मसीह मनुष्य बनने से पहले he was God, वो परमेश्वर था, he was in the form of God, परमेश्वर के स्वरूप में था, he was equal with God. परमेश्वर के तुल्य था। But then how did he become a man? और फिर वो कैसे मनुष्य बन गया? Then it says in verse 7, और 7वें वचन में उसका बात लिखा है, but made himself of no reputation. और उसने अपने आप को बिल्कुल दीन बना लिया, जैसे उसकी कोई उसका सम्मान नहीं है। Now, when you look at the word in the Greek, in the Greek word, और यदि आप यूनानी भाषा में इसको देखें, it's the word kenosis, which means he emptied himself. और देखिए यूनानी में कीनोसिस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ है कि उसने अपने आप को खाली कर लिया। He emptied himself उसने अपने आप को खाली कर दिया and he became in the form of a servant. और उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। Verse 7. और 7वें वचन में लिखा है, So when you understand the meaning और जब आप इसके अर्थ को समझते हैं of that word, और उस वचन के, we are able to understand how God could become a man. और हम समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर मनुष्य बना। Because verse 7 says he was in the form of God, he was equal with God. और क्योंकि वचन 7 कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के तुल्य था। That means he was omnipotent, he was omniscient, and he was omnipresent. और इसका मतलब है सर्वशक्तिमान है, सर्वोप्रिय है, सर्वज्ञाता है। So God is omnipotent, अब omnipresent, omniscient. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वज्ञानी है। But how could somebody who is omnipotent, omnipresent, omniscient now wrap himself up in a human body? और कैसे एक जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, वो एक मानवीय देह में कैसे आ सकता है? Because it says here, he was verse 7, he emptied himself and he took the form of a servant. और 7वें वचन में लिखा है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खाली कर दिया कि एक दास का स्वरूप धारण कर लिया। That means he laid aside his omnipotence, his omniscience, and his omnipresence, and he became a man. और इसका मतलब ये है कि उसने अपने जो स्वभाव सर्वशक्तिमान का है, सर्वज्ञ का है और सर्वज्ञानी का, उसे एक तरफ रख कर वो मनुष्य का रूप धारण करता है। He was still God, और वो परमेश्वर है फिर भी, because that's who he was. और जो वो था, But in order to come inside a physical human body, he laid aside the powers of deity. और लेकिन एक मानवीय देह में प्रवेश करने के लिए उसने अपने ईश्वरीयत्व को एक तरफ रख दिया। That's why when Jesus walked on the earth, और इसीलिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चले फिरे, he was not omnipresent. और वो सर्वज्ञ नहीं थे,
He was in one place at और one वो time. एक ही जगह पर थे He had to walk. और उन्हें चलना था He traveled on a donkey. और उन्होंने गधे पर बैठकर यात्रा को किया। He was not omniscient. That means he didn't know everything. और वो सर्वज्ञानी नहीं थे, इसका मतलब वो सब कुछ नहीं जान रहे थे। No, he said, I don't know the day and the hour, only my heavenly Father knows. और वो कहता है कि वो दिन और घंटा मैं नहीं जानता, केवल मेरा स्वर्गीय पिता ही जानता है। He had laid aside that power of omniscience. और देखिए सर्वज्ञानी का जो सामर्थ है उसने एक तरफ रख दिया। And he was empowered by the Holy Spirit to do the works of the Father. और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे सशक्त किया गया कि वो सेवा कार्यों को कर सके। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Right? So when we look into the Greek word, understand the meaning, then we begin to understand a lot more of what is happening. और देखिए जब हम यूनानी भाषा में शब्दों के अर्थ को समझते हैं तब हम वचन के और ज्यादा मायने समझ पाते हैं। He was God, but he was also man. वो परमेश्वर था परंतु वो मनुष्य भी था। And that's why in John 17, if you go to John chapter 17, और इसीलिए यूहन्ना 17 में आइए हम 17 में Jesus चलें। prays a very interesting prayer. और यीशु मसीह बड़ी रुचिपूर्ण प्रार्थना को वहां करते हैं। John 17 यूहन्ना उसका 17 अध्याय and verse 5. और उसका 5 वचन। John 17:5. 17 का 5वां वचन। And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So Jesus is praying something. और देखिए यीशु मसीह कुछ प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं। What's he asking the Father? और वो पिता से क्या मांग रहे हैं? So imagine, Jesus is here on the earth. और देखिए यीशु मसीह पृथ्वी पर है He's praying to the Father. और पिता से प्रार्थना कर रहे हैं He's asking the Father something. और पिता से कुछ मांग रहे हैं। What's he asking? और वो क्या मांग रहे हैं? Father, glorify me with the glory which I had with you before the world was. और वो कह रहे हैं, पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। That means here on the earth, और इसका मतलब यहाँ पृथ्वी पर he didn't have that. और वो उसके पास में नहीं है He had laid aside that glory. और उसने उस महिमा को कहीं अलग रख दिया है। And now he's asking the Father, और अभी वो पिता से मांग रहा है I want to receive that glory back. और मुझे मैं वो महिमा वापस चाहता हूँ। Glorify me with the glory which I had with you before the world was. और मेरी महिमा उस महिमा से कर जो तेरे साथ थी जगत की सृष्टि से पहले। And so after his resurrection, when he ascended into heaven, that's what happened. और देखिए पुनरुत्थान के बाद में जब वो स्वर्ग उठाया जाता है वही हो रहा है। That glory which he had with the Father, which made him co-equal with the Father, he received back. और देखिए वो महिमा उसको परमेश्वर के एक समान बना देता है। पुनरुत्थान के बाद में वो महिमा उसे वापस प्राप्त हो जाती है। But when he walked the earth, लेकिन जब वो पृथ्वी पर चल फिर रहा था he did not walk in that glory. और वो उस महिमा में होकर नहीं चला। I understand. आप समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है. मुश्किल है? You understanding? आप समझ रहे हैं? Right? On the earth, he walked as what we call it, the sonship glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. और देखिए जब वो पृथ्वी पे चल रहा था तो एक पुत्र की महिमा यानी कि पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के अंदर में वो चल रहा था। But he had the glory that made him equal with God before the world was. और उसके पास एक महिमा था सृष्टि से पहले जो परमेश्वर की महिमा के तुल्य था, जो परमेश्वर के तुल्य करता है उसे। Which he emptied himself of. और उसने उसे अपने आप को उससे खाली कर लिया। And he became a man. और वो मनुष्य बन गया। So the miracles Jesus did, he did it not because of the power of omnipotence, but he did it because of the anointing of the Holy Spirit. और देखिए जो चमत्कार यीशु मसीह ने किए वो सर्वशक्तिमान स्वभाव के कारण नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने वो चमत्कार किए।
You understand? आप समझ रहे हैं? So, how do we come to understand these truths? As we study the text, look at the grammar, look at the meaning of the words, then we begin to understand these things. और इन सारी चीजों को हम कैसे समझते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम उस वचन के व्याकरण को समझते हैं, शब्दों के अर्थ को समझते हैं, उसके बाद में इस वचन को हम समझ सकते हैं। Are you understand? You with me? आप मेरे साथ हैं? And to understand this, we use tools like we use the Greek dictionary or the Hebrew dictionary. It gives us the meanings of the words. और देखिए, इन सब को समझने के लिए हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यूनानी भाषा की शब्दावली है या इब्रानी भाषा की शब्दावली है, ताकि हम इन शब्दों के अर्थ को समझ सकें। All right, we'll just look at one more example. और हम एक और उदाहरण को देखेंगे। Hebrews chapter 11. और इब्रानी उसका 11 अध्याय। I'm sorry. Or maybe, yeah, that's okay. Hebrews 11 verse 1. और इब्रानी 11 उसका पहला वचन। Somebody can read that. कोई भी पढ़ सकते हैं। Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So faith, it says it's the substance of things hoped for. और देखिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। Now, when we read it like that, you know, the meaning doesn't really come across to us. और देखिए, जब हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं तो क्या सच में इसका अर्थ हमें मिलता है क्या? So that's why we try to study the word that has been translated English. We study the Greek words. और देखिए, इसीलिए जो शब्द यूनानी भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित हुआ है, हम उस शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। So when you study the word that is translated in English, it says substance. और देखिए, जब अनुवादित जो शब्द है उसे जब हम पढ़ते हैं, जो वस्तुओं का वस्तु करके शब्द दिया गया है। You study the word. What is the original Greek word? What does it really mean? और यूनानी में शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या होगा? It means two things. और यहाँ उसका दो मतलब होते हैं। That word substance in the Greek, और यूनानी भाषा में जो वस्तु शब्द है, one meaning is its foundation, और उसका पहला मतलब है नींव, the groundwork. और जो जमीनी काम है। So faith is the foundation, the groundwork. और विश्वास जो है वो जमीनी काम है, नींव है। So the foundation, that's what holds the whole building up. और देखिए, नींव एक ऐसी चीज है जो पूरे भवन को संभाले रहता है। The second meaning of that same word is title deed. It's, you know, the paper that says you own. Suppose you buy a scooter or you buy a car, you get a piece of paper, it says this belongs to somebody, or you buy a property, you get a piece of paper, it says this belongs to somebody. It's a title deed, a paper that says you own it. और देखिए, जब आप कोई चीज को खरीदते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपको एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है ये संपत्ति है, गाड़ी या जो भी चीज आपने खरीदी है आपकी है, आपका नाम उस पर है। Okay? So think now you try to understand what is faith. और अब आप समझने का प्रयास करिए कि विश्वास क्या है। Faith. So let's look at one first part. Faith is the title deed of things you hope for. और विश्वास वो है कि जिन बातों के लिए आपने विश्वास किया है, जिनकी आशा आप रख रहे हैं, उसकी पंजीकरण पर्ची है, उस पर आपका नाम लिखा है, वो आपको भविष्य में मिलने पर है। Think about it. आप सोचिए इसके बारे That means faith is your proof of ownership of the things you are hoping or expecting. और विश्वास आपका वो सबूत है जिन बातों के लिए आप आशा कर रहे हैं आपको प्राप्त होने के लिए। That is faith. और वो विश्वास है। It's powerful. और वो बड़ा सामर्थ्य है। Because
My faith is my title deeds. और क्योंकि मेरा विश्वास मेरी वो पंजीकरण की पर्ची है जिसपे मेरा नाम लिखा है। It says I have it, even though my senses cannot see it, feel it. और भले ही मेरे इंद्रियां महसूस नहीं करती हैं, देखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो मेरा है। Faith is a title deed of the things you're hoping for. और जिन बातों की आशा हम कर रहे हैं, विश्वास उनकी पंजीकरण पर्ची है जिसपे मेरा नाम लिखा है। I say I have it. और मैं कहता हूँ वो मेरा है, मेरे पास है। How do you know you have it? और आपको कैसे पता कि आपके पास है? I can't see it. मैं उसे देख नहीं सकता, I can't touch it. मैं उसे छू नहीं सकता। My faith is my title deeds और मेरा विश्वास वो पंजीकरण पर्ची है जिस पर नाम लिखा है of मेरा, the things I hope for. और जिन बातों के लिए मैंने आशा कर रहा हूँ। Are you understand? आप समझ रहे हैं? Second, it's the foundation of what I'm hoping for. और दूसरा, ये वो नींव है उन बातों के लिए जिनकी आशा मैंने रखी है। That means I cannot be shaken from that expectation because I've got faith for it. और इसका मतलब ये है कि जिस बात के लिए मैंने आशा रखी है, मैं उन बातों से हिलूंगा नहीं क्योंकि मेरी नींव दृढ़ है। Faith is the foundation. और मेरा विश्वास मेरी नींव है। You understand? आप समझ रहे So हैं? this is how we understand scripture. We understand the meaning. When we look at the meaning of those words, we begin to understand this is what God is telling us. और देखिए, इसी प्रकार से हम उन वचनों के अर्थों को समझते हैं। जब हम शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और हम अचंभित होते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना मांग रहा And है, then we can begin to apply it in our lives. और उसके बाद हम अपने जीवन के अंदर में उन्हें लागू करना आरंभ करते हैं। So it takes a little bit of effort to study and understand the meaning. और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है कि हम उस वचनों को शब्दों को अध्ययन करें, मेहनत करें। But once you understand the meaning, it's so rich. लेकिन जब एक बार आप उसका अर्थ समझ गए, वो बहुत संपन्न है। Right? So when you talk about grammar, we are saying, look at the tense of the words, look at the meanings of the words. और जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस वचन का काल देखिए, उस वचन का शब्द अर्थ देखिए, किस में लिखा गया है। And in many cases, these words have pictures. I mean, it has images of things with it. और देखिए, कई बार इन शब्दों के अंदर में आकृतियां होती है, कोई स्वरूप इन शब्दों में होते हैं। You know, a lot of things that I feel like sharing, but let's do a few. Romans chapter 8. और रोमियो 8 अध्याय, बहुत सारी बातें बांटने का मन है, लेकिन कुछ बातों को आपके साथ बांट रहा हूं। Romans chapter 8, and maybe give you one or two more examples. और रोमियो 8 में एक दो उदाहरण में आपको देने पाऊं। Romans 8:26. और 8 का 26 वचन। Yes. So it says the Holy Spirit, talking about the Holy Spirit. और देखिए, ये पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। He helps us in our weaknesses. और पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। Because we don't know what to pray for. और क्योंकि हमें नहीं मालूम क्या किस बात के लिए प्रार्थना करना है, But the Holy Spirit makes intercession. He himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. और कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए आहे भर भर के लिए बयां से बाहर मध्यस्थता करता है, विनती करता है। That word in English which says he helps. और देखिए, अंग्रेजी में लिखा है कि वो सहायता करता है। In the Greek, और यूनानी भाषा में it's a compound word. It's a compound word means it's many words put together. और ये कई सारे शब्दों को एक साथ रखा गया है और उस भाषा में। And what it actually means is this. और देखिए, उसका हकीकत में जो अर्थ है वो ये है, He takes a hold of together with us against our weaknesses. और वो हमारे साथ हमारे ऊपर में कब्जा कर हमारी दुर्बलताओं के विरुद्ध वो हमारी सहायता करता है। Okay, let's illustrate. Both of you come, friends, please. आप दोनों आ जाइए।
So, just for example, और उदाहरण के लिए come here, come please. So, he takes a hold of together with us against. और देखिए वो हमारे साथ में उसके विरुद्ध हथियाता है This is only example. और ये केवल एक उदाहरण है Imagine he is Holy Spirit. और मान लीजिए कि ये पवित्र आत्मा है Okay? ठीक है He's a good boy. और ये एक अच्छा लड़का है But just for example, imagine he's a weakness. और उदाहरण के लिए ले लीजिए कि ये कोई And- कमजोरी है And I am trying to overcome my weakness. और मैं जो है अपनी कमजोरी के ऊपर मैं जय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ But every time I'm losing. और लेकिन हर बार मैं हार जाता हूँ I'm trying. मैं कोशिश कर रहा हूँ But my weakness is stronger than me. लेकिन मेरे अंदर में जो हाँ। कमजोरी है I'm trying वो hard. मुझसे अब बहुत ताकतवर है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ But now, लेकिन अब Holy Spirit, hold my hand, come behind me. और पवित्र आत्मा मेरे पीछे आके मेरा हाथ पकड़ लेती है He takes a hold together with me और वो मेरे साथ मेरे हाथ को पकड़ती है against my weakness. और मेरी कमजोरी के विरुद्ध And he helps me overcome. और वो मेरी सहायता करती है कि मैं अपनी कमजोरी पर जय पाऊं Amen? आमीन So that's what the word means. He और takes a hold of together with me against my weakness. And that's how he helps me. और देखिए यही यहाँ पर उस शब्द का अर्थ है कि पवित्र आत्मा मेरा हाथ पकड़कर उस कमजोरी के Thank you. विरुद्ध That's what I मुझे have to say. Thank you. लड़ाती है Thank you. So the word helps. और जो सहायता शब्द है It has so much meaning. और उसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं It doesn't mean I am gone to sleep and the Holy Spirit is helping, और doing इसका his work. और इसका मतलब ये नहीं है मैं तो सोने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा काम कर लेगा Together with me, और मेरे साथ मिलकर he helps me overcome my weakness. और वो मेरी सहायता करता है कि मैं अपनी कमजोरी पर प्रबल हो जाऊं So this is where prayer comes in. और देखिए इसी रीति से प्रार्थना आता है So because that's the context, right? He says he prays, he makes intercession for us. और देखिए यहाँ पे संदर्भ में ये कह रहा है कि वो हमारे लिए विनती करती है So when we are praying और जब हम प्रार्थना करते हैं in the Spirit, और आत्मा में this is what happens. और ये ऐसा ही होता है Holy Spirit is taking a hold of together with us against our weakness. और पवित्र आत्मा हमारे साथ उस हमें पकड़कर हमारी कमजोरी के विरुद्ध विनती करता है Amen? आमीन So that's why we pray in tongues. और इसीलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं When you're praying in the Spirit, और आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं the Holy Spirit is taking hold of together with you to overcome your weakness. और पवित्र आत्मा आपके हाथ को आपके साथ पकड़कर आपकी कमजोरी पर प्रबल होने के लिए आपकी सहायता करता है See, when we study the meanings of the words, we begin to understand these things. और देखिए जब हम शब्दों के अर्थ को समझने लगते हैं तब इन सारी बातों को हम समझने लग जाते हैं And then it motivates us to practice the word, to pray more, to do what the word says. और ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम ज्यादा प्रार्थना करें वचन के ऊपर प्रयास करें और ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करें One last one more example. Let's go to Colossians chapter 2. और कुलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय में जाएं Right? Let's read, please. Verses 14 and 15. Colossians 2, 14 and 15. दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 वचन By canceling the record of debt that stood against us with its illegal demands, this he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Yes. So it's telling us about what Jesus did on the cross. और ये हमें बतला रहा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है So first question, और पहला प्रश्न is it in the past tense or is it in the future tense? और ये कौन से काल में है भूतकाल में है भविष्यकाल में है या वर्तमान में है Past, right? That means
He has finished it. He did this on the cross. और ये भूतकाल में, इसका मतलब क्रूस पर समाप्त कर चुका इस कार्य को, Work is done. और कार्य हो चुका है, It is finished. और ये पूरा हो गया है। But what has he finished? और क्या पूरा नहीं हुआ? What work did he complete? और क्या क्या पूरा हुआ? क्या कार्य उसने पूरा किया है? He wiped out the handwriting of requirements that was against us. और वो विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला। So there is a beautiful picture, actually, that the Apostle Paul is having in his mind as he's writing this. और देखिए, पौलुस प्रेरित जब इस वचन को लिख रहे हैं तो उनके दिमाग में एक बड़ी सुंदर तस्वीर बन रही है। What is it? और वो क्या है? So imagine this. और इसको जरा कल्पना करिएगा। There's a piece of paper, और एक कागज का टुकड़ा है, and on it is written all our offenses. और उसके ऊपर में हमारी सारी गलतियों का वर्णन है। All our offenses written on it. और उसके ऊपर में हमारी जितनी भी गलतियां हैं वो सब उस पे लिखी हुई हैं। What happened on the cross? और क्रूस पर क्या हुआ? It says he wiped out the handwriting of those offense. All that white sheet has been, that sheet which had all the list of our wrong, made it fully clean. White became clean. White sheet. और देखिए, यहाँ वचन कह रहा है उस कागज के टुकड़े के ऊपर में, वो सफेद कागज के ऊपर में जितने भी हमारे नाम पर वो विधियों के लेख लिखे हुए थे, हमारी गलतियां लिखी हुई थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको फिर से सफेद कर दिया, सबको मिटा डाला, साफ कर दिया। On that sheet, there's nothing there. और अब उस कागज के टुकड़े पर कुछ भी मौजूद नहीं है। Amen? आमीन। So literally, और हकीकत में on that sheet, और उस कागज के टुकड़े पर nothing. और कुछ नहीं है, No offenses. और कोई गलतियां नहीं लिखी। He wiped out the list of offenses और उसने हमारे सारे गलत कामों की पर्ची को मिटा डाला है, that was against us. और जो हमारे विरुद्ध थी। And then और उसके बाद में he took it out of the way, having nailed it to the cross. That means that sheet is crushed. फेंक दिया। और देखिए, उसे क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। इसका मतलब उसने सफेद उस कागज के टुकड़े को कचूमड़ बनाया और कचड़े के डब्बे में फेंक दिया। Gone. खत्म हो गया। No more charge sheet against you. और आपके I mean- विरुद्ध अब कोई शिकायत पर्ची नहीं है। That's how we stand in the presence of God. और बिल्कुल वैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं, There's no charge sheet, और हमारे ऊपर कोई इल्जाम अब बाकी नहीं है, no offenses. और कोई गलतियां नहीं है। Whatever we've done, और जो कुछ भी हमने किया हो, He's wiped it clean and taken it out. और उसको पोंछ दिया गया, साफ कर दिया गया और अलग दूर फेंक दिया गया। And then, verse 15, और उसके बाद में 15 वचन में, He disarmed principalities and powers और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार देकर and made a public spectacle of them. और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। So Paul is actually using what emperors in those times would do to describe what Jesus did on the cross. और पौलुस उस समय में जो राजा लोग किया करते थे, उसी कार्य के वर्णन को लेकर यीशु मसीह ने जो किया उसे वर्णित कर रहा है। So this is the picture he has in his mind. और देखिए, ये तस्वीर पौलुस के मन में बनी थी। So suppose one king, he has conquered another kingdom. और सोच कर देखिए कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर में जय पा ली है, Conquered. और उस पे जय पाया है। What does he do? और वो क्या कर रहा है? What would they do? और क्या करते हैं वो लोग? So the king who's victorious, he's moving in front. और देखिए, जो जयवंत राजा है वो आगे चलता है, And behind him, और उसके पीछे the king who's been defeated, his soldiers, they're stripped of everything, nothing.
और जो राजा और सैनिक हारे हैं उनके सारे वस्त्र जो फाड़ दिए गए, उनके ऊपर में कुछ नहीं है, and they are following in the procession. और वो उस भीड़ में उनके पीछे पीछे चलते हैं, And behind them और उनके पीछे is the triumphant army and the people of the king who has won the battle. और उस राजा, जिस राजा ने युद्ध को जीता है, उसकी सेना जो है पीछे जय जयकार करते हुए उनके पीछे पीछे चली आती है। That's the picture that Paul is describing. और देखिए ये तस्वीर है जो पौलुस यहाँ पर दर्शा रहा है। That on the cross, क्रूस पर Jesus disarmed Satan and all his demons. और यीशु मसीह ने शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माओं को निहत्ता कर दिया, And he went and he has made this victorious victory procession. He says in this, made a public spectacle of them, this victory procession in the spiritual realm. और देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसने खुल्लम खुल्ला उनका तमाशा बना दिया, आत्मिक जगत के अंदर में जय की ललकार सुनाई दे रही, उनका तमाशा बना दिया। And you and I are part of that victory procession in the victory of Christ. मैं और आप उस जय के उत्सव में, मसीह की जय के साथ में भागीदार हैं। Amen. आमीन। That's what happened on the cross. और देखिए यही क्रूस पर घटा था, The devil knows it, और शैतान जानता है, but you and I need to know it. और लेकिन आपको और मुझको ये जानने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। And we need to walk in that victory. और उसके साथ हमें उस विजय में चलते रहने की आवश्यकता है। Satan, you have been disarmed. और शैतान तुझे निहत्ता कर दिया गया है, You have been defeated. और तू हरा दिया गया है, And I come in the victory of Christ. और मैं मसीह की जय में आता हूँ। Amen. आमीन। So these are just some examples और ये कुछ उदाहरण है based on lesson number 6, और छठे अध्याय के आधार पर, where if we study the grammar and the meaning of the words, और जब हम शब्दों का व्याकरण और अर्थों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, we can really begin to understand the text, और तब हम सच में वचन को समझ पाएंगे, and we can, we can teach it and we can explain it correctly to people. और तब हम लोगों को सही रीति से सिखा भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। Amen. आमीन। Now, I just want to say something. We have a book, a little thicker book. It's called Interpreting Scripture. और देखिए एक छोटी मोटी किताब है जो वचनों के व्याख्या के बारे में बतलाती है, It's available in English, और अंग्रेजी में उपलब्ध है। and that's the book we use in the Bible college, like in the regular classes. But it takes a lot of time to cover that. और उसे हम मुख्य जो बाइबल स्कूल है उसके अंदर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको पूरा खत्म करने के लिए काफी समय लगता है। So you're welcome to take that and read it. It has a lot more information. Many of the things I'm saying is in that book. और आप जरूर इस किताब को ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी शिक्षा जो मैं दे रहा हूँ उसमें अधिकतम उस किताब के अंदर में मौजूद है। Okay, and hopefully soon it will be in English. It's been translated, but I think they're in the process of printing it, so it'll also come out in Hindi. और बहुत जल्दी से वो हिंदी में भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। Right? But it has almost all these examples that I'm sharing with you. It's there. In the और देखिए जितने भी उदाहरण मैं आप सभी के साथ बांट रहा हूँ, सारे उदाहरण जो है उस किताब के अंदर में मौजूद हैं। Okay, ठीक है, so make use of that book. और उस किताब का उपयोग करें, It'll help you study the scriptures. और वो आपकी सहायता करेगा कि वचन को अध्ययन करने में, Then you understand what it's saying. और उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, Then you can walk in it. और उसमें फिर आप चल पाएंगे। Amen. आमीन। When you understand, then it makes you bold. You're not afraid of the devil. और देखिए जब आप समझ जाते हैं तो आप हियावी हो जाते हैं, आपको शैतान से फिर डर नहीं लगता है, Because you know what Jesus did on the cross. और क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया He है, has disarmed him. और उसने उसको निहत्ता कर दिया है, And you and I are walking in that victory. और आप उस विजय में उसके संग चल रहे हैं। Amen. आमीन। So you and I can confront demonic powers boldly.
cast them out, not be afraid. और देखिए मैं और आप दृढ़ता के साथ उसका सामना कर सकते हैं, उसको दुत्कार सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। Okay. Any questions? कोई प्रश्न है? Before we start the next lesson. अगला पाठ शुरू करने से पहले Yeah, from anything we've done so far, go ahead. We were doing, I think, 1 Corinthians 11. So in that, can you explain verse 7? It says like the glory of man is God, but the glory of woman is man. Something like that. First Corinthians chapter 11, Verse 7. verse 7. Okay. Paul is in this whole passage. और इस पूरे पद में There are several different things that Paul is bringing out. I'll just summarize it. और देखिए बहुत सारी चीजें हैं पौलुस जिनको यहाँ पर लेकर आ रहा है, उसका शीर्षक सारांश मैं आपको बताता हूँ। He's talking about the fact that Adam was created first, and then from Adam, Eve was made. और देखिए वो इस तथ्य पे बात करता है कि पहले आदम को रचा गया और आदम से ही हव्वा को बनाया गया है। So he's using that to teach us about God's government. और वो उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर के नेतृत्व को हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। And how governmental authority flows. और कि किस प्रकार एक सरकार अधिकार जो है कार्य करता है। So there is a context in which governmental authority flows. और देखिए एक संदर्भ है जिसमें सरकारी अधिकार जो है कार्य करता है। So example, in the family, the husband is called to lead the family, to be the head over the wife and the children. So God's governmental authority in the family flows through the husband and for the family. और उदाहरण के लिए एक परिवार के अंदर में जो मुखिया है, पति मुखिया है, वो अपने बच्चे और पत्नी और बच्चों के ऊपर में उनको अगुवाई करता है, उन्हें लेकर चलता है। तो परमेश्वर का जो अधिकार है वो परिवार के अंदर में इस प्रकार कार्य करता है कि पति अपने पत्नी और बच्चों की अगुवाई करे। But at the same time, और उसी समय पर he also talks about how man, Christ, and God. This is in the earlier verse there. He says, verse 3, the head of every man is Christ, the head of Christ is God. और देखिए वहीं पर वो बात कर रहा, तीसरे वचन में कह रहा है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और मसीह का सर परमेश्वर है। So again, he's talking about the flow of God's authority. और फिर से वो परमेश्वर के अधिकार के बहाव के बारे में बात कर रहा है। But there is a context. और लेकिन वहाँ एक संदर्भ का इस्तेमाल कर रहा The है। context is about the earthly life of Christ. और उसका संदर्भ ये है कि पृथ्वी पर मसीह के जीवन के बारे में। In his earthly life, और उसके संसारिक जीवन के अंदर में Christ submitted himself fully to the Father. और मसीह ने अपने आप को पिता को समर्पित रखा। But yet we also know Christ is co-equal with the Father. और उसके साथ ये भी जानता था कि मसीह पिता के तुल्य है। Right? We read from Philippians 2, he was in the form of God, he was equal with God. और हमने फिलिपियों दूसरे अध्याय में पढ़ा कि वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के तुल्य था। But in his earthly life, और लेकिन उसके इस संसारिक जीवन के अंदर में the head of Christ is God. That means he walked in that submission to the Father. और मसीह का सर परमेश्वर है, इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के अधीनता में जिया। So coming back to woman and man, और जब हम स्त्री और पुरुष में आते हैं, because the woman was taken from the man, he's saying the head of the woman is man. और क्योंकि स्त्री को मनुष्य पुरुष में से बनाया गया, इसीलिए वो कहता है कि स्त्री का सर
पुरुष है। But the context is marriage, home, because Eve came out of Adam and God brought Eve to be married to Adam. Context is marriage. और संदर्भ देखिए, संदर्भ जो है विवाह है। परमेश्वर ने आदम से हव्वा को निकाला और उसे आदम के पास लेकर आया। तो संदर्भ यहाँ पर कहने का विवाह और परिवार है। But in the same passage, he still says man and woman are equal. और देखिए इसी पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां कह रहा है कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। He says that in verse 11. और 11 वचन में लिखा है, He says, neither is man independent of woman, nor woman independent of man in the Lord. For as a man came from, as a woman came from man, even so man came through the woman, and all things are from God. So basically he's saying, look, in the context of marriage, because Eve came out of Adam, he's the head. But outside of that, hey, we're actually co-equal. We actually need each other in the Lord. और देखिए अगर हम 11-12 वचन पढ़ते हैं तो वो कह रहा है प्रभु में ना तो कोई स्त्री है ना पुरुष है, क्योंकि अगले 12 वचन में लिखा है क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष भी स्त्री से है। तो ये परमेश्वर पौलुस जो है विवाह के बारे में यहाँ पर बात कर रहा, परिवार के बारे में। And Peter also brings this out. He says, even although in the context of marriage, the husband is the head, even in the marriage, when it comes to spiritual things, we are joint heirs. और देखिए पतरस भी इसके बारे में बात करता है, भले ही विवाह के बारे में यहाँ बात कर रहा है, लेकिन फिर भी पतरस कहता है आत्मिक क्षेत्र में हम सब स्त्री पुरुष एक बराबर हैं। So that's 1 Peter chapter 3. And let me see now. Yes. Bell didn't ring. Okay. 1 Peter chapter 3 पहला पतरस 3 अध्याय and verse 7. और उसका 7 वचन। We are heirs together. और हम सब संगी वारिस हैं। Okay. ठीक है? So there's a context in which Christ, the head of Christ is God. There's a context in which the head of the woman is the man. But we also understand man and woman are co-equal, and also Christ and God are co-equal, that Christ is glorified. और आप संदर्भ को समझिएगा, जैसे मसीह का सर परमेश्वर है और पत्नी का सर मसीह है, लेकिन हम इस बात को समझे कि मसीह के अंदर में हम सब संगी हैं, एक साथ हैं, कोई अलग अलग नहीं है, हम सहभागी हैं। Okay, so let's pause here. We'll go for a break. और यहाँ रुकते हैं, हम ब्रेक के लिए जाएंगे And we'll come back and finish. और फिर दोबारा से आएंगे फोटो के लिए।